All right, friends, welcome all. This is our essay session, Sunday essay sessions. And today we'll be continuing our discussion about 2021 mains essay topics. The topic for the day is philosophy of wantlessness is utopian, while materialism is a chimera. This is the first topic. And the second topic of the day is about the hand that rocks the cradle rules the world. So we'll be beginning with these topics. So is there any preference order? मतलब किसी को do you want to start with the second topic first or something like that? We can do that. मैं audible हूँ क्या guys? हाँ हाँ सर हाँ आप ऑडिबल है ऑडिबल सर। हैं। हाँ. तो कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें? फर्स्ट से स्टार्ट कर ले क्या? हाँ फर्स्ट से ही करते हैं। ठीक है. थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं बिकॉज ये मतलब इट्स मोर लाइक अ पीयर डिस्कशन वाला थिंग. और पूरा ऐसे तो मतलब ऐसे लिख के या किसी एक ने नहीं है तो एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन विल हेल्प. एंड लास्ट टाइम वी हैड दिस डिस्कशन दैट जैसे वी आर व्हेन समवन इज गिविंग सम इनपुट्स, कोई भी जैसे चैंडलर बिंग सर या कोई और एक्सिलर सर अगर दे रहे इनपुट्स तो इट इज बेटर इफ समवन कैन रिकॉर्ड इट. मतलब रिकॉर्ड एज इन टेक्सचुअली उसको टाइप कर लो यहाँ पे थ्रेड में या अपने पास, सो दैट बाद में हम लोग शेयर करके डिस्कस कर सके. ऑल राइट, डू यू गाइस अग्री विद दिस? Yes, sir. Please carry on. Yeah. So hopefully somebody will keep recording because last time there was that issue. So my basic understanding of this topic was that it kind of deals with two extremes. And one extreme is wantlessness, and the other extreme is materialism. So and it says that both of them are utopian. Chimera का मतलब भी utopian ही होता है. तो this is also utopian, that is also utopian. So it kind of in first instance it's suggesting for kind of a middle path, or it brings this topic into consideration. कि both of these things are extreme. Utopian is the word utopian means like too idealistic, unachievable goal, ideal, something like that. Okay. So I went about with basic. I'm just going to introduce the topic, and then we'll discuss about the introduction. It will be through an anecdote or something. So wantlessness को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? The state of being without any desire, है ना? Passion, मतलब कुछ desire या passion नहीं है. और materialism को हम लोग क्या बोलेंगे कि materialism मतलब जैसे अभी consumerist culture है, या the fact that our happiness is linked to our material wealth or some kind of possession. So this is the basic understanding of the topic. अब किसी को अगर कोई specific anecdote होगा तो you can feel free to share. It's open to all. Guys, anyone has any anecdote or something to share? Because see, it's not going to be a monologue from me. Everyone has to share, and only then we'll have some meaningful discussion. I would have gone for both the contrasting values. On one side, the value of Buddha, that what is wantlessness, and on the other side, the value of the Western culture of the sophist, so that I could contrast कि दोनों इंट्रोडक्शन में contrast कर दिया कि दोनों philosophies को दोनों बड़े बड़े thinkers और इनके साथ associate करना था, उनके साथ associate करके बता दिया कि ये क्या है. Rather than going starting with any anecdote, I would have gone for explaining what the salience of these two words is, wantlessness and materialism, and why it is called utopian and why it is called chimera. It would have been my take. Others' take is also welcome. Right. So this is one way of introduction, like you explain your understanding of the topic. This is also a very valid way to start the essay. And the other way is of course through anecdotes. तो जैसे अभी मुझे दिमाग में आ रहा है कि one of the anecdotes can be about वही बुद्धिज्म वाला anecdote जो हम लोग ने लास्ट टाइम भी रियल इज रैशनल वाले में डिस्कस किया था कि कैसे, बिकॉज बुद्धिज्म का भी थिंकिंग काफी इसी से मैच करता है, राइट? कि पैशंस को हटाना है. पैशन इज व्हाट डिजायर, राइट? पैशन इज अनदर वर्ड फॉर डिजायर. तो उससे हम लोग लिंक कर सकते हैं कि हाउ गौतम बुद्धा, वही सेम the same anecdote which everyone is aware of, कि he saw suffering and then he left his material world. He was a prince and he went out of his house and went on a search for inner happiness, and that is how he became Buddha. है ना? ऐसे करके anecdote दे सकते हैं, या फिर जैसे इससे स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों एक्सप्लेन करके व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग.
तो उसके बाद एनेक्डोट तो हो गया कवर। किसी को और कुछ एनेक्डोट में अगर आ रहा है दिमाग में या कुछ सोच के रखा है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। मैंने पहले से सोच के नहीं रखा था, अभी एक मतलब गांधी का फिलॉसफी है ना, मिनिमाइजेशन ऑफ वांट वाला, तो वो ये नहीं बोलते कभी कि वांटलेसनेस रहना चाहिए, और कभी ये भी नहीं उन्होंने बोला कि मटेरियलिस्ट बन जाओ, बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म पे फोकस करो। तो उनका भी लिंक कर सकते हैं अपन यहाँ पे। यस, फिलोसफी ऑफ मिनिमलिज्म के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये एक और कॉन्ट्रास्टिंग वैल्यू हो सकता है। ये एक तरीके का मिडिल पाथ जैसा बता सकता है इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग वैल्यूज के बीच में, कि ना तो बुद्धा की कॉन्ट्रा एकदम यूटोपियन है, ना फिर वो मटेरियलिज्म भी सही है। बहुत बढ़िया था ये, एक मिडिल पाथ जैसा, मिनिमलिस्ट। राइट राइट। तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे कि सिंप्लिसिटी या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स, मतलब एकदम खत्म करना भी बहुत आइडियल हो जाएगा, और मटेरियलिज्म तो आइडियल वैसे है ही, मतलब इट इज यूटोपिया। हाँ हाँ, तो ठीक है। वो तो स्टेटमेंट में बोल भी वही रहा है ना कि मतलब वांटलेसनेस जो है वो यूटोपिया हो जाएगा, और मटेरियलिज्म की तरफ ज़्यादा चले गए तो वो शिमेरा है। यस सर, दिस इज वेरी गुड पॉइंट, बट आई वुड हैव रिजर्व दिस पॉइंट फॉर कंक्लूजनरी अप्रोच। मतलब बॉडी के जो लास्ट के पार्ट्स है ना, उस पे रखता। पहले मैं ऐसे को अप्रोच करता, तो इन्हीं मतलब ये मेरा टेक है कि ये अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैं इसको बचा के रखता कि बाद में एक वे फॉरवर्ड की तरह इसको यूज करता, rather देन ऑन द इंट्रोडक्शन। आप लोग अगर इसे डिफर कर रहे हैं तो प्लीज बताइएगा। नहीं नहीं, सही है, वो क्लाइमेक्स में थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट भी आता है। राइट। तो अगर मतलब यही सही है कि एक जो आपका जो मेन पॉइंट है या फिर आपका जो सिंथेसिस है ना, जो कि मतलब थीसिस एंटीथीसिस के बाद जो एंड में दोनों का कन्फ्लुएंस होगा और हम लोग जो कंक्लूड करेंगे, वो ये पॉइंट उससे थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, गांधी वाला। तो ठीक है, तो अभी एनेक्डोट या फिर अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग को या एंकर एंकर मैं पैरा। मैं कुछ ऐड करना हाँ हाँ, चाहूंगा, बोलिए। या हम 18th सेंचुरी इंडिया को भी ले सकते हैं क्या? कि 18th सेंचुरी में काफी स्पिरिचुअलिज्म वगैरह को इंडिया फॉलो कर रहा था, तो कुछ थिंकर्स आए थे, उन्होंने कहा था कि मतलब मटेरियलिज्म ऑफ द वेस्ट एंड स्पिरिचुअलिज्म ऑफ इंडिया कैन यू मिक्स टू मतलब टू मेक ए लाइफ प्रैग्मेटिक। तो कैन वी गो दैट साइड आल्सो? राइट राइट। तो इसमें हम लोग बेसिकली हम लोग कुछ भी कोट कर सकते हैं, बट जो भी हम कोट करें उसको डिफेंड करना है। जैसे आप अभी बोल रहे हो, दैट सीम्स अ वैलिड पॉइंट, बट अगेन आई थिंक इट इज मोर अलाइन टुवर्ड्स द सिंथेसिस पार्ट की, मतलब मिडल पाथ। राइट। आप जो बोल रहे हो कि वेस्ट और ईस्ट को मिक्स करना है ऐसे। राइट तो राइट। जैसे अभी एक और मुझे दिमाग में भी आया, दिमाग में कि जो मटीरियलिज्म वाला एस्पेक्ट है, उसमें हम लोग ना एक एंशिएंट फिलोसफी है चारवाकवाद, आपको अगर पता होगा तो बृहस्पति ने दी थी, कि इट्स लाइक हेडोनिज्म, मतलब प्योर हेडोनिज्म। जो ये बेंथम का कॉन्सेप्ट है, बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म है कि वी जस्ट वांट मोर ऑफ प्लेजर एंड वी वांट लेस ऑफ पेन। तो ये जो एक हेडोनिज्म है, इसको हम लोग इससे लिंक कर सकते हैं, कि मटीरियलिज्म से लिंक कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंशियंट इंडिया में चारवाक फिलोसफी थी, और दैट वाज अबाउट प्योर हेडोनिज्म। कंप्लीट मटेरियलिस्ट फिलोसफी था वो। यावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, एक उसका ये है स्लोगन कि जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, ये कर्ज लेके भी घी पिएंगे, ऐसा कुछ है। बहुत ब्रिलियंट था सर जो आप बोले। मेरे पास एक और वो आया, अगर आप ऐसे ही फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस का भी कोई श्लोक से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर उसके बारे में बताया, उसके फिर इसको भी एक श्लोक से स्टार्ट करें, तो बहुत बढ़िया लगेगा। मतलब एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पैराडाइम बिल्कुल ऐसा कि ये इसका एसेंस है, ये इसका एसेंस है। मतलब क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, और ब्यूटिफिकेशन भी होगा अलग से। हाँ, ठीक है। ऐसे किया तो एकदम मतलब परफेक्ट लगेगा, बट वही वो टाइम पे याद आना चाहिए। अगर किसी को कुछ पता है, जैसे मैं अगर आप इसको शेयर करेंगे इस थ्रेड में तो अच्छा होगा, मतलब इफ यू कैन टाइप इट आउट, इवन आई थिंक इंग्लिश में भी पैराफ्रेज करेंगे तो चलेगा। और यस सर। नहीं नहीं, मैं कर दूंगा टाइप, वो मेरे पास है लिखा हुआ, दैट विल बस बी कॉपी रियली पेस्ट नाइस। मारना है। ओके ओके। एंड वांटलेसनेस वाला अगर किसी को कुछ ऐसा पता होगा, अगर आपको पता है, तो आप या फिर आप गूगल भी कर सकते हो एट दिस मोमेंट, है ना। इट्स नॉट अबाउट जो नॉलेज पहले से है, वी आर ब्रेनस्टॉर्मिंग काइंड ऑफ। तो ठीक है, आई थिंक अभी तक अगर समराइज करना है तो वी आर स्टार्टिंग विद टू एक्सट्रीम्स टू शो कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एंड वी आर लिंकिंग विद एंशिएंट इंडिया वाले एग्जांपल्स। इससे अपने को सफिशिएंट आई थिंक इंट्रोडक्शन के लिए वी विल हैव इनफ मटेरियल।
after that, like Auxiliary sir was also pointing out and some others were saying that जो synthesis है या फिर जो Gandhian idea है minimalization of wants etc. that will come little late. That is like our punchline. It should be reserved for later, है ना? Last में punch मारेंगे और ऐसे खत्म करेंगे, right? Is this correct? So अभी एंकर पैराग्राफ में probably हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अलग अलग डिमेंशंस में हम लोग दिखा सकते हैं इसी टॉपिक को. अगर हम लोग अलग अलग डिमेंशन जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, इवन द लास्ट सेशन प्रीवियस सेशन वी वर डूइंग whatever is the topic at hand, we will try to expand it into different walks of life. जैसे इकोनॉमी हो गई, तो इकोनॉमी में क्या होगा कि इट विल बी जैसे एक मटेरियलिज्म की बात आती है तो फिर वही इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म दिमाग में आता है, तो मार्क्स का कॉन्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं, है ना? दिस इज समथिंग जस्ट कमिंग आउट ऑफ माई माइंड, अभी मैं बोल रहा हूँ. तो मार्क्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटी, है ना? तो ये कहीं से लिंक हो सकता है, ये हो सकता है क्या लिंक, मतलब या कोई और कॉन्सेप्ट अगर मार्क्स का होगा तो उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे. दिस विल बी फॉर द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ठीक है ना? जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे कुछ आ रहा है तो कीप इट इन रिजर्व, फिर आप शेयर करना मेरे बाद में, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमी के बाद में सोशल उसमें जाएंगे, उसके बाद में हम लोग साइंस में जाएंगे, उसके बाद हम लोग एथिक्स में जाएंगे. ऐसे वी विल ट्राई टू ओपन इट, है ना? ओपन दिस टॉपिक एंड वी हैव टू एक्सट्रीम्स. वन इज ऑफ मटेरियलिज्म एंड अदर इज ऑफ वांटलेसनेस. हम लोग दोनों को शो करते जा सकते हैं हर उसमें. दिस इज हाउ आई थिंक वी शुड प्रोसीड. व्हाट डू यू गाइस थिंक? Okay, we can start with the prehistoric type thing. Okay, even the evolution of human, we have just have minimum wants. When in the humans, we know the Homo erectus or what they are, they have minimum, even food, the basic things. Then after the evolution of the time, they just moved up to it. Okay, just need more and more wants, just like the pyramid of wants. Okay, if the basic needs are fulfilled, the next we move to next need, then after next need. Okay, so in the historical background we can say that, but in the later phase, in the philosophical, especially in the history of Indian civilization, like the Charvaka school, Vedanta school, because Lokayada, right? Okay, they said that, okay, the materialistic school of things, even they put that, okay, there you need wants, because we don't need too much wants. Even Buddha said we need the golden path, because don't go extreme, just go through minimum one. And then the historical perspective, then the geographical perspective, we can say that the geography also determine what we want or what we don't want. If you are coming from a background of in a highly dense forest, you have minimum needs, but your security, your food, your whatever you want to sustain your life, that much needed. Then if you are coming from a arid or arid region, your security is security, your food, what are the things need for your subsistence is different. But what do you say that if a person from the highly material in a prosperous region, coming from highly luxurious life, that was he using extreme energy, he using whatever he is, just enjoying his life. Other part, he is lending a minimum life. So in the next part, we can say that's a social background. Even say, let me interrupt you for 1 minute. Actually, what is happening now? We are trying to all your points are extremely valid, but if we are going to fit it into this system, then I think the one point very good point which you made was about Maslow pyramid of wants. If I'm right, we can give it in psychological aspect. So when we are opening this, we will say that, okay, economic sphere, we will have the obvious thing about neoliberals versus Marxist. Neoliberals नहीं, मतलब इतना technical term use करने की जरूरत नहीं है, but क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट वर्सेस मार्क्सिस्ट ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद में लाइक यू सेड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, we will have this Maslow pyramid of wants, which shows that there are various types of wants which one person can have depending upon his maturity, psychological maturity, and each one wants to end with this is what I understand, but मैं गूगल भी कर लूंगा एक बार. Maslow's pyramid, self actualization I think highest level पे होता है. हाँ, that way of the nirvana, we can compare with nirvana. Nirvana will be little extreme, I think. Self actualization, I mean, relief from the desire. Right. Nirvana is relief from the desire, but I don't think self-actualization is nirvana. It's like you are happy with what you aspired to do and you have been able to do it. For example, like today is a very solemn day. Lata Mangeshkar has Lata Mangeshkar has passed away. It's a solemn day for us.
So we can say that she had achieved self-actualization, है ना, because she had such a splendorous career, and then whatever a singer can possibly want to achieve in life, she had done that. So we can give this example in that psychological paragraph. So Yeah, I think we'll proceed on this line. Next उसमें आप suggest करो. यस सर। ऑल्दो आप लोगों ने जो भी बोला, मुझे थोड़ा सा टफ लगा। हो सकता है मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की वजह से, या मैं इतनी सारी फिलोसफी से ज़्यादा रूबरू नहीं हूँ इसीलिए। तो एक ईजियर मुझे ऐसा लगता है डायमेंशंस हम लोग अगर खोलना चाहें ऐसे को, तो इंडिविजुअल लेवल पे खोल सकते हैं, और उसके बाद फिर मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं। पहले इंडिविजुअल लेवल पर फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस कैसे काम करेगी, या मटेरियलिस्टिक सेशन कैसे काम करेंगे। नेशन लेवल पर हम देख रहे हैं जो यूएस की जो कैपिटलिस्ट फिलोसफी है उससे मतलब हो सकता है, क्योंकि सभी लोग इतना फिलोसफी से ना कनेक्ट कर पाए, तो मैं बोल रहा हूँ। और फिर तीसरा सोसाइटी लेवल पर हम लोग देख सकते हैं कि वेस्टर्न ये हम सोसाइटी में जो लोग सब लोग सजेस्ट करते रहेंगे। ये आपने जो बोला दैट इज एब्सोल्युटली राइट। इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड देन नेशनल लेवल, ये भी एक एस्पेक्ट है खोलने का। उसमें यस देखते हैं सर। फिर, ठीक है ना? तो आप कह रहे हो, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। हाँ, फिर वो इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। वसुदेव कुटुंबकम सारी की सारी, मतलब वसुदेव कुटुंबकम डायरेक्टली तो लिंक हो नहीं रहा, क्योंकि वो वर्ल्ड इज अ फैमिली बोलता है। तो हम लोग ऐसे मतलब जैसे अगर किसी के पास कम फिलोसफीज हैं और वर्ड भी फिल करना है, क्योंकि आई गेस अगर मैं ऐसे खोलता फिलोसफीज में, तो आई विल डेफिनेटली फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। क्योंकि अगर मैं इतनी सारी फिलोसफीज को एक्सप्लेन करना जानता हूँ, सो वेल एंड गुड। बट इफ इन केस अगर मैं ये जैसे आपने बताया मास्लोज लॉ ऑफ वांट्स, ऐसे बहुत सारे फिलोसफीज आप लोगों ने गिना दिए, तो जैसे अब हैबिट ही नहीं होती सर इसको लिखने की। तो आई गेस ये क्योंकि जैसे इंडिविजुअल लेवल पे खोला, तो उसके सारे के सारे एस्पेक्ट्स बता दिए। इकोनॉमिक लेवल पर क्या हो रहा है, ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल पर क्या हो रहा है, रिलीजियस लेवल पर क्या हो रहा है, इंडिविजुअल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इंडिविजुअल की सोशल लाइफ कैसे इफेक्ट हो रही है, इंडिविजुअल का फैमिली के साथ क्या रिलेशन बन रहा है अगर वांटलेसनेस की तरफ जाएंगे। गौतम बुद्धा के बारे में डाल दिया कि उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था वांटलेसनेस में। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे मटेरियलिस्टिक लाइफ जो फैमिली को अफेक्ट करने लग गई है। कंटेम्प्रेरी टाइम का एग्जाम्पल दे दिया, कंज्यूमरिज्म का एग्जाम्पल दे दिया। ये मुझे लग रहा था थोड़ा सा मेरे लिए इजी पड़ेगा। व्हाट यू गाइस राइट थिंक राइट, ठीक है मतलब। ना, मतलब हर एक का अलग होता है, दैट्स इट। बट यहाँ पे जैसे वी हैव कम एज अ ग्रुप, तो वी विल ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉइंट्स फ्रॉम ईच पॉसिबल वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, सो दैट वी हैव अ गुड सेट ऑफ फॉर्डर, है ना, कि हम लोग कैसे इसको टैकल करेंगे। दैट्स द थिंग। इसलिए एनीवन हैज एनी गुड पॉइंट्स इन एनी एस्पेक्ट, यू कैन प्लीज फील फ्री टू शेयर। तो अभी तक हम लोग ने जैसे एक्सिलर आपने बोला कि आप इंडिविजुअल लेवल पे बोलेंगे, तो आप कह रहे हो कि दोनों एस्पेक्ट का आप उसका इफेक्ट बताओगे इंडिविजुअल पे क्या हो सकता है। दिस इज अ वेरी यूनिक वे, दिस इज अ वेरी गुड वे दैट यू हैव सजेस्टेड, कि अगर वांटलेसनेस करेंगे तो क्या हो सकता है। उसका एग्जांपल आपने दिया गौतम बुद्ध का, जो ही हैड टू लीव हिज फैमिली। तो आप शायद इसको ऐसे अगर बताओगे कि फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, तो फैमिली को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा होगा उनके लिए, तो इट वाज अ रिलेशनशिप एंड इट एंडेड, राइट। फादर सन रिलेशनशिप भी था, हस्बैंड वाइफ का भी था वो। इट्स अ वेरी यूनिक वे ऑफ गिविंग द सजेशन, दैट्स अ वेरी गुड वन। उसके बाद में प्रोसीडिंग, तो अकॉर्डिंगली आई थिंक आप फिर कम्युनिटी लेवल पे भी बोलोगे कि अगर इफ यू वांट टू ऐड यू कैन, और मेरे दिमाग में भी कुछ आ रहा है, तो इफ यू हैव समथिंग फॉर कम्युनिटी यू कैन शेयर इट प्लीज। तो ठीक है, तो कम्युनिटी पे मेरे दिमाग में वो आ रहा था आपको कि भी ऐड जैसे सकते। कहते हैं ना, या प्लीज गो अहेड। someone was trying to say something, they can add, they'll add। कम्युनिटी पे मेरे दिमाग में एक बहुत ऐसे एक आ रहा था, बट इज इट फिटिंग इनटू दिस टॉपिक देखना पड़ेगा, कि आई थिंक ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड देयर इज दिस स्टोरी दैट नोबडी यूज्ड टू लॉक देयर होम्स, और आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, है ना, इट वाज मौर्य आई थिंक, कि अपने घर कोई लॉक नहीं करता था। तो इट शोज कि एक कम्युनिटी में है, कोई घर लॉक नहीं कर रहा, तो देर इज नो सस्पिशन, मे बी देर इज अ काइंड ऑफ एथिक्स और मोरालिटी जो सोसाइटी की ऐसी है कि कोई चोरी नहीं करता, किसी के उतने वांट्स नहीं है, मे बी इट इज वेरी वेरी प्रॉस्परस सोसाइटी। तो ये एक दिमाग में आ रहा है, वी कैन लिंक इट समहाउ मे बी। और बाकी तो जो हम पुराना जो डिस्कशन कर रहे थे ना, उसमें मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया था, आई विल ऐड टू दैट। जो ये हरी सर हैड सेड ना दैट in the historical aspect, prehistoric times, there was no materialism, and because of that, I'm sure this was the point. Hari, correct me if I'm wrong. Okay, the point was that there were fewer wants, and that is why the life was more sustainable. तो इसमें मैंने एक डिस्कवरी में एक देखा था कि there are some species, right, like shark हो गए, या there are even some species of birds which have not
changed over a very evolutionary period of time. तो उनके उतने ही लिमिटेड वॉन्ट्स हैं, उनका पॉपुलेशन जो बात नहीं कर रहे प्लीज आप माइक या थैंक्स जो शेयर नहीं कर रहे वो अपना माइक म्यूट कर लेना क्योंकि एको होता है। तो मैं क्या बोल रहा था, पॉइंट मेरा ये था कि थोड़े ऐसे स्पीशीज है जो एवोल्यूशन में चेंज नहीं होते एंड दे आर मच मोर सस्टेनेबल। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, तो उनको अभी जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिकल, वो बोल रहे हैं ना कि कुछ एक्सटिंक्शन इवेंट होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्लाइमेट चेंज है एंथ्रोपोजेनिक। बट ऐसे स्पीशीज है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए दे हैव लिविंग लाइक उनके स्टेबल पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल शार्क हो गए, या एक बर्ड भी था शायद जो हमेशा के लिए सेम ही रहा है फॉर मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो वो बता सकते हैं कि उसमें भी बहुत पॉजिटिव्स है और हम जो कर रहे हैं उसमें भी पॉजिटिव्स है क्योंकि साइंटिफिक वो है। बट दिस इज अ वेरी ब्रॉड पॉइंट, वी हैव टू फिट इट इनटू द ऐसे, वो देखेंगे अभी जैसे प्रोसीड करेंगे तो ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग खोल रहे हैं टॉपिक को, किसी को और कोई पॉइंट होगा तो प्लीज ऐड करिए, प्लीज फील फ्री टू ऐड। We can call, I mean, the evolution of variety, evolution of thinking, that kind of things also, right? Even in the even I already told you that in the prehistoric period and the later period, our needs keep changing according to the time and space. Okay, if AI, that means if in the current era we can't say that okay we need minimum, because once our the basic needs, I mean the basic things we the food, water, right, I mean freedom, that kind of things was once, and now the internet is part of our life. It's also a basic need for us, so we can't eliminate that. But we the other side, it said that okay, too much materialism now. Yeah. Okay. I just want to point out that it's our needs and want. I mean, the want is keep changing, but the time and space determine what's our want and what we need. और जैसे एक्सिलर सर आपने ये डाला है ना, तो इसको लाइक वील हैव टू ओपन इट विद एनेक्डोट्स, है ना। ये तो मतलब हो गई बात की इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशन, इंटरनेशनल, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। बट वील हैव टू सी कि हर एक पॉइंट में हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड वे एंड इट्स अ वेरी नाइस सजेशन। ऐसे अगर करेंगे हर एक में, अगर हम लोग इफ यू आर स्पेंडिंग अराउंड 1.5 पेज, तो आप देख लो कितने हो जाएंगे इसी में, 4 into 6-7 पेजेस इसी में हो जाएंगे। दिस विल बी मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी पार्ट, राइट। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। यस सर, यू गाइस प्लीज कैरी ऑन, मैं इसमें एडिट करता जाऊंगा जैसे जो भी आप लोग का सुना और मुझे जो भी याद आता जा रहा है। जैसे मैंने अभी एडिट किया, जैसे मैं पहले एक स्ट्रक्चर बना रहा था, फिर उसी को बार बार एडिट करके एक ही मैसेज करूंगा। एक्चुअली क्या होता है, आप लोग काफी सारे मैसेज करते हैं ना, तो रिवीजन करते टाइम मैं कंसोलिडेट, मतलब मैं नहीं कर पाता, उसको असिमिलेट नहीं कर पाता अच्छे से। तो ये रिवीजन करने के लिए बना रहा हूँ मैं, कि एक ही जगह पर एक ही मैसेज में सारे के सारे पॉइंट फिट करते जाएंगे बाद में। राइट। और जो लोग एनेक्डोट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, बाकी के जितने भी लोग आप सुन रहे हो, आप भी अगर इफ यू कैन जस्ट कंसोलिडेट इट लाइक एक्सिलर सर इज डूइंग, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस बाद में देखने के लिए, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग देखने का तो टाइम नहीं मिलता ना, मतलब यूजुअली दिस इज एक्सेप्टेबल। तो ठीक है, अगर किसी और को कोई स्पेसिफिक एनेक्डोट्स या एग्जांपल्स देने हैं या कुछ एक्सपैंड करना है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर। तब तक आई थिंक बॉडी में हम लोग ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं, वी आर शोइंग दैट 2 एक्सट्रीम्स हैं और वो कैसे अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशन, इंटरनेशनल, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके पहले जो एक सजेशन था वो था इकोनॉमिक स्फीयर में, साइकोलॉजिकल स्फीयर में, सोसाइटी में, एथिक्स में, कैसे उसको ये करेगा। तो अगर ये थिंकिंग में अगर किसी के पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप प्लीज शेयर करते रहना। तब तक मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा बहुत सिंथेसिस के डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं अभी, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि दिस इज अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड इट्स फिलोसॉफिकल, तो चलता रहेगा डिस्कशन। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, प्लीज बताइए। हाँ, मेरा थोड़ा नेट इशू था। मैं ना सॉरी, मैं मिस कर गया। मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि इंट्रो के लिए ना मैं सोच रहा था कि एक अलेक्जेंडर की स्टोरी है कि जब वो इंडिया आया था ना, उसको पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करना था, और एक सेंट था जिससे उसने बात की। तो उसने पूछा कि सेंट ने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, तो वो बोला कि मैं पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करके खुश रहना चाहता हूँ। और वो सेंट ने उस पर हंसा और वो बोला कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं फिर भी खुश हूँ। तो एक ये स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा वो दिखाना था कि ये दोनों एकदम एक्सट्रीम एंड्स जाते हैं।
और फिर मैं पूछ रहा था कि इसमें मार्क्स का हिस्टोरिक मटेरियलिज्म दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे मटेरियल कल्चर का राइज हुआ है डायलेक्टिक्स में जा जाके। हाँ, बट वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट दिखा सकते हैं। मतलब मे बी यू कैन यूज द थिंग कि एकदम मतलब वर्ड सेम यूज नहीं करने, बट थोड़ा बहुत आइडिया लेके उसको एक्सपैंड करते रहना। दैट विल बी आई थिंक मच बेटर। आपको क्या लगता हाँ सर, हाँ सर, तो मतलब मैं ना इंट्रो का जस्ट बाद ये डालने का सोच रहा था। उसके बाद आपने जैसे बोला ना कि कैपिटलिज्म की आपने बात की, तो वही वो जो कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म है, और उसका एक मतलब सोशलिज्म इंडिया फॉलो करता है मिडल पाथ की, प्योर मटेरियलिज्म भी नहीं है कैपिटलिज्म का, और कम्युनिज्म का प्योर वांटलेसनेस भी नहीं है। वो मैं एक सोच रहा था। और फिर हम इसमें ना लाइक इस्लाम में कॉन्सेप्ट होता है कि आपको कुछ परसेंट ऑफ द अर्निंग्स डोनेट करनी पड़ती है, तो है? इसमें हम कहीं जक़ात। ना कहीं वो, हाँ ज़कात, तो इसमें हम वो बात भी कर सकते हैं कि लाइक वो रिलीजन ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक मत बनिए, वो ऐसा भी नहीं बोल रहा कि प्योर वांटलेसनेस रहे आप में, लेकिन वो बीच में मतलब मिडल पाथ ले रहे हैं कि आप अगर आप ऑन कर रहे हैं तो आप कुछ परसेंट डोनेट करो, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, आई थिंक और वी शुड अवॉइड ये रिलीजियस बेसिस पे ना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना कौन कैसा ऐसे चेक कर रहा है, तो वी शुड अवॉइड इट। नहीं, वो तो मतलब एक आर्ग्यूमेंट देके उसको सब्सटैंशिएट कर, हाँ मतलब मैं समझा आपकी बात। और अभी हाँ आपने बट एथिक्स का बोला ना, तो मुझे, हाँ हाँ सर बोलिए। नहीं, वी शुड ये कर ट्रस्ट सकते द हैं अपन कि एक रैशनैलिटी साथ। ऑफ द नहीं, we should trust the rationality of the evaluator. I am very open to any religious anecdote being inserted into my essay. I guess I should trust the rationality and the wisdom of the examiner. And मेरा ये टेक था। कोई कह रहा था ना कि ऐड करें नहीं करें, उनका क्या मेंटेलिटी होगा। हाँ नहीं सर, आप नेक्स्ट पॉइंट तो सुन लीजिए। मैं बोल रहा था ना कि इसके बाद हम हिंदुइज्म की बात करेंगे, जिसमें हमारे कौन से हमारे इसमें मतलब हिंदुइज्म में ऐसा बोला गया है कि आपके 4 काम होते हैं लाइफ में। पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, मतलब ये मटेरियलिज्म की तरफ पॉइंट करता है। थर्ड होता है काम, और फोर्थ होता है मोक्ष। तो हम इसकी बात कर सकते हैं कि कैसे मतलब वो हर एक फेज के थ्रू होके जा रहे हैं। मतलब ये बस कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने की अलग अलग लोग अलग अलग चीज बोल रहे हैं। और हाँ, एथिक्स की अभी हम किसी ने बात, दो तीन रिलीजन का अगर एग्जांपल एक साथ देंगे ना, तो फिर वो वैसा रिलीजियस एंगल भी नहीं आएगा। जैसे ये मुस्लिम्स में जक़ात है, हिंदू में भी चैरिटी का बहुत सारा है। जैसे ये हमेशा से एंशियंट टाइम से ही दान वगैरह पे वो दिया गया है इम्फेसिस। उसके बाद फिर और भी रिलीजन्स में है ना, जैनिज्म बुद्धिज्म वगैरह में भी है ये सब। अभी जैसे चैंडलर सर बोल रहे थे हिंदुइज्म का, ये काफी मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा। ये इसको शायद 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ या आश्रम वो बोलते हैं ना, कि हाँ क्या सर, करना है हाँ, हाँ उस हाँ, टाइम पे। नहीं तो लेकिन मैंने अभी सर ये गूगल उन्होंने ना किया। मतलब उन्होंने थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन किया। जैसे धर्म अर्थ और काम मोक्ष है ना, ये पूरे ह्यूमन लाइफ का गोल है, 4 गोल। कि आपको ह्यूमन लाइफ में अगर मोक्षा चाहिए तो आपको इन चारों के अंदर में रह के धर्म करना है। अर्थ भी मतलब आपको जीवन चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। काम जो आपका कर्तव्य है। और लास्ट स्टेज जो है वो मोक्ष है। और वो जो आश्रम है ना, वो अलग अलग है। वो हो गया ये गृह क्या बोलते हैं, आश्रम ये सब। ब्रह्मचर्य। गृहस्थ ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ। संन्यास। हाँ हाँ, करेक्ट। तो मुझे एक मेरा भी थॉट है इसके ऊपर रिलीजियस चीजों को यूज करने में, कि आई फील कि वी शुड लिबरली डू इट, बट व्हेन वी आर यूजिंग रिलीजियस कुछ हमारा अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में, तो वी शुड बी एक्यूरेट। मतलब जो हम लोग ने कहीं पे पढ़ा है या वी नो फॉर श्योर, तो उसको यूज करना चाहिए। अदरवाइज देयर इज अ चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, वो हो सकता है। तो हाँ हाँ, ये थोड़ा करेक्ट। दिमाग में, जैसे मैं भी बोल रहा था तो मैं क्लियर नहीं था, तो मैंने 2 चीजों को मिक्स कर दिया। अगर ये चीज अगर ऐसे में दिखेगी ना कि 2 चीज मिक्स हो रही है, यानी मतलब कुछ ऐसे खिचड़ी बन रही है, तो इट इज अ बैड, मतलब थोड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है उससे। तो थोड़ा अगर क्लैरिटी होगी तो आप फ्रीली शेयर करो, अदरवाइज यू कैन कीप इट वेरी जनरल। तो जनरल में क्या होता है ना, थोड़ा आपको लीवे मिलता है कि यू कैन शेयर इवन विदाउट क्लैरिटी। बस ये लगा मुझे। तो ठीक है, तो रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से चैंडलर सर हैज गिवन गुड एग्जांपल। एंड इवन वो कैपिटलिज्म का ना, मैंने एक पॉइंट निकाला था, ये जो मटीरियलिज्म है ना, आई एम ऑडिबल राइट? तो ये हाँ यस हाँ, सर, ये यस वाला। यस, मटेरियलिज्म यू आर। के लिए, हाँ, प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन करके ये मार्क्स ने टर्म दिया था, कि ये जो दिस वाज अ वे ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म, या जो भी ये बोर्जुआजी है। तो मार्क्स को ये बोलना था कि दे आर बेसिकली, उनको बस कीप दे वांट टू कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग मोर एंड मोर वेल्थ ना, कैपिटल एक्यूमुलेट करेंगे और उसी के बेसिस पे और कैपिटल एक्यूमुलेट करेंगे, तो इट इज एंडलेस। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कहीं पे, है ना।
और इवन दिस वन वाज वेरी नाइस। सिंथेसिस में एक पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ। एक तो अभी मैंने यहाँ पे रखा है पॉइंट कि गांधी का हम लोग रखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स, और दूसरा एक हम लोग रखेंगे जो चैंडलर सर ने सजेस्ट किया था कि सोशलिस्ट या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी जो हम लोग ने रखी है इंडिया में, दैट इज लाइक इन बिटवीन द टू, है ना। तो ये आ सकता है। और एक मेरे को ऐसे इन जनरल अगर हम लोग लास्ट में अगर हम लोग कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि इट्स अबाउट मिडल पाथ, राइट। लाइक वी आर श्योर दैट द ऐसे टॉपिक इज सजेस्टिंग फॉर अ मिडल पाथ, तो हम लोग उसमें ना एरिस्टोटल का वो गोल्डन मीन वाला बोल सकते हैं। उसने भी हाँ, बोला था ना एरिस्टोटल की कि गोल्डन मीन जो। हाँ, तो उसने उन्होंने भी बोला था ना कि बहुत ही ज्यादा आइडियल नहीं रखना है कोई भी एम, थोड़ा प्रैक्टिकेबल रखेंगे तो इट इज, इवन दो इट इज नॉट द बेस्ट, इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकेबल। तो ऐसे कुछ करके हम लोग उसको सिंथेसिस वाले पॉइंट मतलब एंडिंग वाले पॉइंट में हम लोग ला सकते हैं। तो आई गेस वी हैव डिस्कस सफिशिएंट पॉइंट्स फॉर दिस। अगर और ऐड करते रहिए तब तक हम लोग कंक्लूजन के बारे में सोचना भी स्टार्ट कर सकते हैं, इफ यू गाइज अग्री विद दिस, है ना। अदरवाइज इफ एनीवन हैज एनी अदर पॉइंट्स प्लीज फील फ्री टू ऐड। तब तक कंक्लूजन का अगर हम लोग सोच रहे हैं तो अभी हम लोग को सब कुछ वाइंड अप करना है। तो हमने बेसिकली ये बोला है कि ओके वी एक्सपैंडेड की दो एक्सट्रीम्स हमारे पास है और दोनों ही हार्मफुल है ना। आइदर ऑफ द एक्सट्रीम्स आर हार्मफुल। और रिलीजन भी बोल रहा है, अलग अलग रिलीजन भी बोल रहा है कि थोड़ा मॉडरेशन चाहिए। ये इवन कॉर्पोरेटिज्म में भी होता है कि थोड़ा बहुत वो CSR वगैरह चाहिए, सो दैट यू गिव बैक टू द कम्युनिटी। इससे उनको एक अच्छा वो भी मिलता है ना, देयर इज अ गुड परसेप्शन कि हाँ ये चैरिटी करता है। जैसे इवन वी सी द लिस्ट ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट, तो हम लोग को भी उनका रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो दैट इज वन वे ऑफ काइंड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, है ना। मतलब रिसर्कुलेशन नहीं, क्या बोलेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है ना। कंपैशनेट तो ऐसे कैपिटलिज्म सर। ये टेक्निकल टर्म होगी तो इसको ऐड करना पड़ेगा उसमें, कंपैशनेट कैपिटलिज्म सिंथेसिस वाले पॉइंट्स में डाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी हम लोग आई थिंक वी शुड मतलब कंक्लूजन का थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या कि अभी ये एक हाँ नेशनलिज्म वाला जो पार्ट है कि जो करंट पॉलिटिकल व्यू रहता है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो गया, एक मॉडरेट नेशनलिज्म हो गया, तो वी कैन गो इनटू दैट वे आल्सो। सर ये तो सिंथेसिस हुआ ना, मटेरियलिज्म कहाँ है इसमें? मुझे भी थोड़ा लगा कि नेशनलिज्म ना थोड़ा सा वी आर वांट, मतलब इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक नाउअडेज, It's a philo. I इलेक्शंस mean, भी आ रहे हैं it's a बट इट psychology इज evolved. थोड़ा बहुत वॉन्डरिंग फ्रॉम, यस गो अहेड। I said the security aspect. That was a psychological evolved, ओके ओके, right? तो या आई थिंक दैट नेशनलिज्म विल बी थोड़ा सा वॉन्डरिंग ऑफ द टॉपिक। तो अगर उसको आप फिट कर पाओ तो ही यूज करना, अदरवाइज सजेशन रहेगा कि ये तो काफी सिंपल है ना, मटेरियलिज्म और क्या बोलते हैं राइट, वांटलेसनेस, उसी में रहेंगे राइट, तो थोड़ा राइट। बेटर होगा। बाकी कंक्लूजन में तो हम लोग वही बोलेंगे कि मिडिल पाथ, और अभी जो बोला है मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स, और गांधी जी का बहुत फेमस वो स्टेटमेंट है ना कि देयर इज नॉट इनफ फॉर वर्ल्ड्स ग्रीड बट इनफ फॉर वर्ल्ड्स नीड। तो वो लगा देंगे कि ग्रीड इज लाइक सजेस्टिंग एंडलेस वांट, मतलब वांट फॉर द सेक ऑफ वांट्स, है ना, जो अभी कंज्यूमरिस्ट फिलोसफी है, तो उसको हम लोग को अवॉइड करना है, वो बोल देंगे। और हम लोग बोलेंगे कि इवन द आइडियल एस्थेटिक लाइफ की ऐसे एकदम ही एस्थेटिक हो गए, जैसे वो है ना, आई थिंक आजीविका है, एंशिएंट फिलोसफी आजीविका, इट वाज लाइक दे विल रिनाउंस द एंटायर वर्ल्ड, कुछ नहीं करेंगे। तो वो भी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मॉडर्न मैन, फॉर नॉट फॉर एवरीवन, है ना। तो ऐसे बोल के हम लोग सिंथेसाइज कर लेंगे कि ठीक है, वी विल ट्राई टू फॉलो द मिडिल पाथ, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट गांधी हैज सजेस्टेड। वी हैव टू बी इन सिंक विद नेचर। और हम लोग इसको ना, आई थिंक यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत एनवायरमेंट से लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक करेंगे एनवायरनमेंट से, तो दिमाग में ये आ रहा था कॉन्सेप्ट कि ये जो भी पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है लास्ट 200 ईयर्स का, जो भी हम लोग ने प्रोग्रेस किया है, ऑफ कोर्स उसके बहुत बेनिफिट्स हुए हैं हमारी लाइफ का, जो मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं कि जो the level of our life has improved a lot, medication आया, medicines आए हैं, all scientific progress हुआ है, but also at the same time जो ecological impact है और जो climate change हो रहा है, उससे हम लोग को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे कि क्यों मिडिल पाथ इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लोग एंड कर देंगे टॉपिक को। आई थिंक दिस विल हैव सफिशिएंट pages for the essay. If anyone has Right. any ending, else we'll move to the next one. किसी को कुछ एंडिंग कमेंट्स डालने हैं तो आप बता दीजिए,
अभी, फिर नेक्स्ट में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आजीविका वाला जो था उसमें ऐसे लिंक कर सकते हैं क्या वांटलेसनेस से अपन, कि आजीविका ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिया इस पे व्यू, तो उनका रिलीजन जो है ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया, मतलब उनका जो भी थॉट ये था, उनका जो भी आइडियाज़ वगैरह था वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाया, जबकि बाकी जो रिलीजन्स थे उसके कंटेम्प्ररी में उन्होंने ह्यूमन के जो मटेरियलिस्ट एस्पेक्ट्स हैं उनको भी एड्रेस किया थोड़ा थोड़ा, मतलब एटलीस्ट व्हाट, मतलब व्हाट इज़ द नीड ऑफ लाइफ, या फिर जो भी चाहिए ज़रूरत कम से कम उसको एड्रेस किया। जैसे बुद्धिज़्म हो गया थोड़ा साइंटिफिक है, या हिंदुज़म में भी बाद में मटेरियलिस्ट फिलोसफी आया, तो ये लोग सस्टेन कर सके लॉन्ग टाइम के लिए। मतलब बोल तो सकते हैं, बट ये इट्स लाइक वी आर इवैल्यूएटिंग द रिलीजन, तो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी लग सकता है। अगर उस इस टोन में रखा, तो उसको अवॉइड, थोड़ा और स्मूथली लिखना पड़ेगा, इसे थोड़ा अवॉइड और करना स्मूथली चाहिए। उसको। हाँ, अवॉइड भी कर सकते हैं, वो भी है, बट अगर लिखना है तो थोड़ा और टैक्टफुली लिखना पड़ेगा। बट आजीविका का एग्जाम्पल वही था कि आजीविका इज लाइक द एक्सट्रीम ऑफ वांटलेसनेस। ये सिर्फ इंडियन फिलोसफी में नहीं है, इवन रोमन फिलोसफी में भी था शायद, स्टोइक या कुछ उसे उनको बोलते थे, दे यूज्ड टू। और इवन आई थिंक कैथलिक उसमें भी है ना, रोमन कैथलिक जो है कि दे विल अवॉइड प्लेजर, एंड जो नीड्शे वाला कॉन्सेप्ट है, तो काफी सारे हैं इसमें अगर हम लोग डालते जाएंगे तो। बट कंक्लूजन में आई थिंक गांधी से एंड करेंगे तो इट विल बी बेस्ट, बिकॉज गांधी हैज गिवन सोल्यूशन कि हम लोग सिंक में रहे, मतलब मिडिल पाथ से रहे। एरिस्टोटल भी डाल सकते हैं जो हम लोग ने डिस्कस किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर हाँ आगे, क्या बोलते सर हैं? सर हाँ हाँ। हाँ, एक हाँ हाँ हाँ, पॉइंट दे बोलो। रहा हूँ आपको, थोड़ा रिफ्रेम करना पड़ेगा। हम लोग है ना वो इंटरनेशनल के लिए ये एंगल डाल सकते हैं कि कोलोनाइजेशन जो था वो मटेरियलिज्म के लिए था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी ना वो प्योर वांटलेसनेस बेस्ड थी। मतलब गुजरात डॉक्ट्राइन तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, बट कुछ इस एंगल से मतलब एक ये पॉइंट दे सकते हैं। और फिर हम अब धीरे धीरे मतलब बीच में कहीं शिफ्ट हो रहे हैं कि हम प्योर वांटलेस भी नहीं है, मतलब हम जैसे इक्वल लेवल पे रिलेशंस रखना चाहते हैं, नैम हमें भी नै, थोड़ा प्रॉफिट चाहिए। नैम का एग्जाम्पल दे सकते हैं गोल्डन मीन में। हाँ ना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है हम और ना गोल्डन ज्यादा। में एग्जैक्टली वो ब्लॉक में नहीं जा रहे, बीच में रहे, दैट इज देयर। हाँ, बट ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो अपनी पंचशील आप बोल रहे हो ना, शायद पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी, वो वांटलेसनेस की तो नहीं थी। आई थिंक आप थोड़ा मिसकंस्ट्रू कर रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है, अकॉर्डिंग टू मी इट वाज व्हाट वी कुड एट दैट टाइम डू, सर, लाइक व्हाट। गुजरात डॉक्ट्राइन में था ना कि हमें अपने नेबर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मतलब इन रिटर्न। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मतलब हम लोग उससे थोड़ा डिविएट कर रहे हैं, लाइक म्यांमार में हमने कुछ नहीं बोला, उस एंगल से मैं बोल रहा हूँ, पंचशील नहीं सर। अच्छा, तो गुजरात डॉक्ट्रिन का भी है ना, उसको अगर देखेंगे ना तो पोस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट था यार वो। मतलब वी आर आई थिंक गोइंग इनटू पीएसआईआर डिटेल्स हियर, बट आई थिंक गुजरात डॉक्ट्रिन का वो था ना कि 91 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो हमको अभी रीजनल वो बनना था, क्या बोलते हैं, हेजेमॉन बनना था, तो इसलिए हम लोग आजू बाजू के लोगों को कंफर्ट कर रहे थे। बट इट्स ओके, यू कैन कोट इट, बट एकदम वांटलेसनेस ना थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है यार। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको टेम्पर करा था, गेटिंग इट? मतलब आपका एग्जाम्पल इज राइट हाँ हाँ जीएस के सर। पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वांटलेसनेस जब भी आप बोलोगे ना तो थोड़ा आजीविका हो गया या कुछ ऐसा आप एग्जाम्पल कोट करो जो कि आप मतलब सब्सटैंशिएट इजीली कर पाओ, है ना, वरना आप फंस जाओगे ऐसे में, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो चलो गाइस, फिर अभी आगे बढ़ते हैं, वील गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये वाला तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल। शैल वी मूव अहेड? व्हाट डू यू गाइस से? बिकॉज थोड़ा टाइम टाइम कंस्ट्रेंट भी है, वी हैव टू फिनिश एट 11। हाँ, वी शुड मूव। ओके गाइस, सो ये तो रिपीटेड है ये ना। रिपीटेड है तो इसको जल्दी से वाइंड अप कर लेंगे, सब लोग अपने अपने पॉइंट्स बोलो। इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग वही है, मैंने देखा भी था ऑनलाइन, ये इट्स टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मदर्स। ये तो हम लोग स्कूल वगैरह मदर, में भी लिखते थे, हैंड। हाँ, मदर्स का इम्पोर्टेंस ऑन शेपिंग द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, एंड वो बोलते हैं ना कि आर चिल्ड्रन आर द फ्यूचर, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, आप लोग भी थोड़ा अपना अंडरस्टैंडिंग एलैबोरेट करके आप शेयर कर सकते हो, विल डेवलप अ कंसेंसस। ठीक है, एनीवन वांट्स टू शेयर, प्लीज गो अहेड। तो तब तक मैं ही बता देता हूँ कि लाइक आई सेड, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, तो क्रेडल सिग्निफाइज चिल्ड्रन हियर, है ना। एंड द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल कुड बी एनी केयर टेकर, बट मतलब कॉमन सेंस से हम लोग मदर बोल सकते हैं, बट अभी वही है कि मदर भी नहीं,
इसको थोड़ा और एक्सपैंड भी कर सकते हैं कि अभी केयर टेकर और भी कोई हो सकता है, या LGBTQ में हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि 2 फादर्स है और उन्होंने किसी को, तो वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, बट मैं ऐसे बोल रहा था बस. आई गेस दैट विल बी इररेलेवेंट इन दिस केस. But hand that rocks the cradle means hand is signifying the mother, the cradle signifies the child, and rules the world probably signifies the fact कि our children are our future. तो जैसे हम लोग अपने children को जो हम लोग सिखाएंगे वही जाके आगे they will have to they will be the future of the world. ऐसे हम लोग इसको देख सकते हैं. This is my understanding. अभी just मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में. तो इसको कैसे start करेंगे हम लोग? Shall we begin this with an anecdote, or if anyone has thought of something, please share, guys. आपको share करना पड़ेगा. One story we can tell about Einstein, I guess. If you remember the story of his like बचपन में उनकी माँ ने बोला था, मतलब उनको काफी स्कूल में ना क्रिटिसाइज किया जाता था. तो एक कुछ लेटर आया था और फिर उन्होंने कभी उनको बताया नहीं. मतलब something like one story was there, if anyone remember exactly. तो वो उससे स्टार्ट. The cherry tree. वो एडिशन था ना कि एडिसन. हाँ, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. यस. तो कैन वी कोट दैट इन स्टार्टिंग? We can quote it. मतलब if I am getting it right, तो आपका ये सजेशन है कि एडिसन्स मदर्स रोल इन शेपिंग हिज एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, क्योंकि एडिसन का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट भी है ना कि इफ आई हैव गॉट वन थिंग रॉन्ग आई हैव फेल्ड सम 999 टाइम्स बिफोर, या ऐसे कुछ तो कोट है. आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली टेल यू द कोट, बट समथिंग वाज थिंग ऐसा कुछ हुआ था कि उनके जो टीचर थे उन्होंने बोला था कि दिस पर्सन कैन नॉट अचीव एनीथिंग लाइक दैट. इस तरह से वो फिर उनकी मदर को लेटर गया था, और जब मदर ने लेटर पढ़ के सुना दिया था, उन्होंने ये बोल के उनको ऐसा बोला था कि बच्चे को, मीन्स हर सन, कि यू कैन डू बेटर, मीन्स यू विल बी द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ दिस some planet. ऐसे इस तरह से she told in other way, in opposite way, and that became true. So that's one of the story, but I don't remember exactly like it's Einstein का है Edison, that I'm not remembering. So this is one of the story. School days में पढ़ा था मैंने ये story. एडिसन का ही है. Okay. Very much valid in this case. वो एक्चुअली ना स्कूल वालों ने बोला था कि योर सन इज मेंटली डिफिशिएंट, तो उनकी माँ ने बोला कि आपका बच्चा बहुत जीनियस, मतलब वो लेटर झूठ मूठ बोल के बताया उसको, एडिसन को, कि लेटर में लिखा है आपका बच्चा बहुत जीनियस है, दिस स्कूल इज वेरी स्मॉल फॉर हिम, स्मॉल प्लेस फॉर हिम, ही कैन अचीव ग्रेटर थिंग्स इन हिज लाइफ, ऐसा करके. So yeah, this story, yes, exactly. आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है एक और स्टोरी, जैसे अभी सीक्रेट ने बोला तो उन्हीं से इंस्पायर होके इस आइडिया आ रहा है कि विश्वनाथन आनंद जो हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है एंड ऑल्सो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, चेस वर्ल्ड चैंपियन, उनकी एक बुक थी, उसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जैसा कुछ लिखा था. उसमें उन्होंने अपनी मदर का रोल बताया था कि कैसे एट दैट टाइम व्हेन चेस वाज नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया, एंड ऑल्सो मतलब उसका जो कुछ बुक्स वगैरह होते हैं, कुछ पढ़ना होता है, मटेरियल होता है, वो अवेलेबल नहीं था. तो हिज मदर वाज ऑलवेज देयर विथ हिम, to go with him, to spend money, even to sacrifice her own career for his development, and see where that got him. He became the first grandmaster, and then such a brilliant career, and today he is inspiring an entire generation of chess players. And one more अभी okay, means one more वैसे मुझे अभी याद आ रहा है, but I think I don't know if we can quote or this or not, like actress Priyanka Chopra के बारे में, but I don't know if anything can be quoted in this essay or not, because if we will see, she has achieved because उन्होंने भी अपने मन का रोल काफी हमेशा बताया है इस चीज से. So that's what I got remember. अच्छा, एक एड आता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये शायद ओलंपिक प्लेयर से रिलेटेड है. दो सी डिडंट गेट एनी मेडल इन ओलंपिक, लेकिन उनका एक ऐड है ना, वो देखो माँ मैं सोना दे के सोना ले आई, ऐसा करके. तो आप लोगों ने मे भी देखा होगा. एक सेकंड में देख के बताता हूँ गूगल करके. स्ट्रक्चर कर लेते हैं उसको. जैसे काफी सारे एनेक्डोट्स हमको पता है, बिकॉज ये दिस इज लाइक अ टॉपिक व्हिच इज पर्सनली क्लोज टू अस आल्सो, एज वेल एज हम लोग स्कूल से ऐसे टॉपिक्स को डील करते हैं, तो वी आर वेरी वेल वर्स्ड विद एनेक्डोट्स. तो एनेक्डोट देते जाएंगे, बट इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे तो गाइस कैसा कर पाएंगे. तो मैं ये सोच रहा था कि एक छोटा कोई एनेक्डोट से हम लोग स्टार्ट करते हैं,
पॉपुलर एनेक्डोट, जैसे लेट अस से एडिसन वाली स्टोरी हो गई या विश्वनाथन आनंद की स्टोरी हो गई, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर इन चाइल्ड बेयरिंग एज वेल एज ब्रिंगिंग अप ऑफ द चाइल्ड विद द राइट वैल्यूज, ऐसे थोड़ा सा एक स्वीट उसमें छोटे उसमें हम लोग समराइज करेंगे। और हम लोग बोलेंगे कि नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द बॉडी, है ना। तो हम लोग इसको खोलेंगे कैसे, बिकॉज सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ मदर पे अगर हमको इतना 10, 8, 9 पेजेस लिखना है तो मुश्किल हो जाएगा, तो उसको थोड़ा और डायमेंशन देना पड़ेगा। तो इस लाइन पे आप थोड़ा सोचना स्टार्ट करो, सो दैट इन द प्रोसेस नेक्स्ट 15 मिनट्स में आप कुछ उसके बारे में बोल सको। तो मेरे दिमाग में ना एक आ रही थी वैल्यू, जो मतलब एक कॉन्सेप्ट आ रहा था। ये सुधा मूर्ति आपको पता होगा, नारायण मूर्ति वाइफ, इन्फोसिस के जो है, तो उनका बेसिकली उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह वायरल होते हैं यूट्यूब पे। तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी कि सुधा, मतलब ये एनेक्डोट में नहीं जाएगा, इसको बॉडी में फिट करना है। तो मुझे लग रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि व्हाट वैल्यू सुधा मूर्ति कुड गिव हर चाइल्ड। अभी यूजुअली क्या होता है, व्हेन ही इज द ओनली सन ऑफ इन्फोसिस के जो है, दे आर वेरी रिच, तो देयर इज अ चांस दैट वो थोड़ा स्पॉइल हो जाएंगे या कुछ, बिकॉज ऑफ द वेल्थ एंड द एफ्लुएंस। तो सुधा मूर्ति ने एक टॉक में ऐसे बताया था कि शी ऑलवेज टोल्ड हिम कि वेल्थ इज नॉट इन व्हाट यू कैन कीप फॉर योरसेल्फ बट इन हाउ मच यू कैन गिव। तो मतलब वही फिलांथ्रोफी वाला कॉन्सेप्ट इसमें है। एंड फिर देन हर सन बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल, मतलब काफी अच्छे एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट किया, नाउ ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैसे हाउ अ मदर प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ शेपिंग अ सन चाइल्ड्स लाइफ, नॉट ओनली इन केस ऑफ सम डिफिकल्टीज। मतलब हम लोग ये नॉर्मली सोचते हैं ना कि कोई अगर पुअर वुमन है या किसी लोअर लोअर, मतलब जैसे आप बोलो कि माइग्रेंट फैमिली है ऐसे, तो वहीं पे तो इवन ये एक अलग एग्जांपल हो जाएगा कि कैसे एफ्लुएंट हाउस में भी मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सुधा मूर्ति इज वेरी फेमस फॉर अ लॉट ऑफ चैरिटी, और उन्होंने कई सारे, आई थिंक उन्होंने कई सारे लोगों को अडॉप्ट भी किया हुआ है शायद। ये थी या कोई एक और एक लेडी है उनका था ना अभी, वो भी यार अभी अभी तो मैंने अभी भी जो जस्ट यार सिंधु का सब सिंधु ताई सबका, इवन शी इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल वी कैन फिट हियर। इनका मेरा नाम मुझे नहीं आ रहा था, बट इनका थोड़ा सा इनके लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और इसको यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बिकॉज इट्स लाइक ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसमें कि इट्स नॉट ओनली अबाउट योर बायोलॉजिकल मदर, एग्जैक्टली, mother is like हाँ, mother is सोसाइटल, like more than just a biological fact. It is like ट्रू। you care about the society. तो such great women like जो अभी आपने, can you please repeat that ma'am's name? सिंधु ताई सबका। हाँ, तो सिंधु ताई, तो if we give this example कि how she played a role, कि she adopted so many kids and then उन्होंने फिर क्या ये किया, मतलब when you adopt a child and you give it a chance for a better life, then it has a chance to affect the world. तो ये एकदम फिट हो रहा है इसमें, है ना, the hand that robs the cradle वेरी will मच एंड वी कैन, हाँ, मतलब ये बॉडी में काफी फिट कर सकते हैं सुधा मूर्ति जी और ये सिंधु ताई सबका। राइट। तो सर इससे हम लोग थोड़ा, हाँ बोलिए। मैंने ना इसको थोड़ा अलग इंटरप्रेट किया। अगर मुझे इसको स्टार्ट करना होता ना, तो मैं चाणक्य की स्टोरी से स्टार्ट करता कि उसने मतलब चंद्रगुप्त को बहुत कम एज से ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था, और फिर मतलब उनका जो भी मतलब अभी मतलब स्टेटस है वो हमें पता है। फिर मैं ना इसको इस डायमेंशन में ले जाता, जैसे आप लोग सब ने ना वुमेन पे लिमिट कर दिया, मैं ना उसको थोड़ा और ब्रॉडर में ले जाता, जैसे कि गांधी रॉकिंग द कार्डल ऑफ इन्फेंट इंडिया, मतलब इस लेवल पे ले जाता। मतलब मैंने तो ऐसे इंटरप्रेट किया, मुझे तो क्लिक भी नहीं हुआ था। मतलब ये जब ऐसे आया था ना, तभी भी मुझे नहीं क्लिक हुआ था कि ये मदर तक लिमिटेड है। मैंने तो इसको ऐसे सोचा था मतलब, और फिर यू ऐसा आर करके आपके एब्सोल्युटली रॉन्ग, लिमिटेड नहीं डायमेंशंस है बहुत दिस। बड़े हो जाएंगे। इट्स नॉट एट ऑल लिमिटेड। आपने जो शेयर किया बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है कि वही ना, मैंने मतलब बोला था कि इट इज नॉट जस्ट द मदर का जो कॉन्सेप्ट है, गार्डियन का कॉन्सेप्ट है ना, कि किसी को हेल्प करना है। तो आपने जो दिया वो तो एकदम ब्रिलियंट एग्जांपल है, इस पे सीरीज वगैरह भी आई है चाणक्य की, है ना। और एक वो भी है ना, जो अकबर वाज द प्रिंस डेसिग्नेट, तो जब जहांगीर की डेथ हो गई थी, तो आई थिंक इट वाज जहांगीर नहीं यार, हुमायूं की डेथ हो गई थी, तो इट वाज लाइक ये ना कि हाँ, दैट पर्सन हैड गिवन हिम दैट। ये तो आप ये सोचो कि अगर उन्होंने वो टाइम पे वो गार्डियन का रोल नहीं प्ले किया, उनका एक बार नाम प्लीज आप डाल देना चैट में, आई कुड नॉट हियर यू क्लियरली। बहरम सर खान, उसका कोई सर बहरम एक एग्जाम बैरम खान। एक और एग्जांपल दे सकते हैं सर? एनलाइटेंड अभी सर, बस एक मिनट मैं बस बहरम खान का एक खत्म सेकंड कर मैं लेते, बस जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स।
तो बहरम खान का ये बोल सकते हैं कि अगर उन्होंने नहीं गार्डियनशिप दी होती अकबर को तो पूरा मुगल एम्पायर शायद कोलैप्स हो चुका होता है ना, कोई और ही होता वो टाइम पे। तो इट कैन हैव सच अ ह्यूज इम्पैक्ट है ना, द रोल ऑफ अ गार्डियन। और ये जो चैंडलर सर ने जो एग्जांपल दिया ना कि इट्स नॉट लिमिटेड टू मदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग आगे एक्सपैंड करेंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गया और एक चाणक्य वाला एग्जांपल हो गया। तो प्लीज चैंडलर सर एक और प्लीज शेयर। एग्जाम्पल दे सकते हैं सर, अभिमन्यु वाला। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे सर इसको कैसे? ये अभिमन्यु जब ये उसकी मदर के जब वो मतलब पेट में थे ना, तभी शायद उस अर्जुन डिस्कस कर रहे थे ये चक्रव्यूह के बारे में, तो उसी को सीख के उसने चक्रव्यूह को तोड़ा था। Even we can say that the guru shishya, that kind of things. Even a guru is teaching his disciple that हाँ how वो to do वाला it in a भी proper हुआ, way. अभिमन्यु वाला भी यूनिक है, तो इसको भी हम लोग डाल सकते हैं कहीं पे, छोटा सा मेंशन कर देंगे कि डाल देंगे। या हरी प्लीज कंटिन्यू। I said that we can say that the teacher and the role of teacher and the student, if the teacher guide them properly in a way, the student become also prosper. That why the we can quote that Abdul Kalam quote that the student future is shaped by the teachers, the family, the teacher, that kind of things. देन आल्सो आई थिंक अच्छा, वो आई रिक्वेस्ट ओलंपिक वाला चैंडलर सर बताया टू, था ना मैंने। सॉरी एक सेकंड ना, मैं आप अपना शेयर कीजिए 1 मिनट में। बस चैंडलर सर वाला बोल रहा था कि जो उन्होंने बोला था ना कि गांधी एज अ रॉकिंग द क्रेडल ऑफ इन्फेंट नेशनलिज्म, और उनके आने के बाद कैसे वो पूरा मास नेशनलिज्म में कन्वर्ट हुआ, वो भी बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। बस वही है कि थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करना पड़ेगा, ज्यादा स्पेस उसमें जाएगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। राइट चैंडलर सर, आप यही बोल रहे थे ना? हाँ हाँ ठीक है, सर। हाँ ठीक है मैं सर, आप भी बताइए आप क्या कह रहे थे। नहीं, मैंने वो ओलंपिक प्लेयर के बारे में बताया था ना, तो उनका नाम भवानी देवी है। ये फेंसिंग था उनका गेम। तो उनका क्या था ना कि वो स्पेशल ड्रेस चाहिए होता है प्रैक्टिस के लिए या फिर खेलने के लिए भी। तो उनकी माँ ने अपना सोना गिरवी रख के उनके लिए ड्रेस लाया था। तो उसी पे ऐड है वो कि मतलब आपने सोना रखा तो, एंड शी बिकेम फर्स्ट लेडी टू क्वालिफाई इन दैट गेम ओलंपिक में। अभी तक कोई इंडिया का कोई मतलब गया ही नहीं था लेडी, या आई थिंक ओवरऑल प्लेयर ही है वो पहली इंडिया की। ग्रेट एग्जाम्पल, ये बहुत इमोशनल एग्जाम्पल आएगा। तो आई थिंक इसको एकदम लास्ट में डालेंगे ना तो वो पंच लाइन जैसे एक्ट करेगा। तो दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। और जो Can we one more? Sorry. ये बोलिए, सीक्रेट हाँ बोलिए आप। यार, ये ऐसा भी तो एक और एक एग्जांपल लाइक शिवाजी महाराज का भी दे सकते हैं जीजाबाई से रिलेटेड, बिकॉज रिलेटेड टू द स्टेट पॉलिटिक्स और जो भी है उसमें जो उन्होंने गाइड किया था शिवाजी महाराज जी को, तो दिस कैन ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल वी कैन टेल। बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, और और इसमें ना उनके आप गुरुजी अच्छे के से भी बता एंगल से सकते दे हैं। सकते हैं। हाँ, उनके अ, गुरुजी, बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो रोल ऑफ जीजाबाई वाज वेरी मतलब प्रोमिनेंट, बिकॉज शी गेव लाइक मतलब उन्होंने काफी है ना, नॉट इन बचपन में ही बट आगे भी जाके स्टेट से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग या वो सब है उसमें उन्होंने काफी उनको है ना सपोर्ट या हेल्प भी की थी। तो दैट इज तो वन ना ऑफ द थिंग। आप जो एग्जांपल दे रहे हो ना, इसको हम लोग ऐसे डाल सकते हैं कि हाउ मदर्स या फिर गार्डियन हैव शेप्ड एंटायर एम्पायर्स, ऐसे बोल के उसका इम्पैक्ट दिखाएंगे कि जैसे हाँ मराठा एग्जैक्टली, एम्पायर तो को पूरा शेप पॉलिटिक्स, किया। हाँ पॉलिटिकल में व्यू में ये डाल सकते हैं हमारा मराठा शिप में, यस वही एंड इवन संभाजी महाराज ऑल्सो, बट स्टिल लेकिन ज्यादा मुझे प्रोमिनेंट इधर शिवाजी महाराज का ही लग रहा है, बिकॉज जीजाबाई और उनका रिलेशन बहुत मतलब डिफरेंट था उस हिसाब से देखा जाए। एंड और ये मतलब ये बैरम खान और अकबर वाला जो था ना, उससे भी वो हो जाएगा। तो जब मतलब उसको भी डालेंगे और इसको साथ में नहीं रखेंगे, बट आप जैसे बोल रहे हैं अलग से इसको लिख देंगे। तो मैं एक्चुअली कुछ मैं बोल रहा था बट अभी मेरे को, हाँ ओलंपिक प्लेयर का जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, उससे मेरे दिमाग में आया था कॉन्सेप्ट कि एक गोल्फ भी किसी इंडियन प्लेयर थी, लेडी प्लेयर, शी वाज प्लेइंग गोल्फ एंड शी वाज लीडिंग थ्रू आउट, एंड लास्ट में वो 4th आई थी। तो उनको मेडल नहीं मिला, तो उनको उतना पब्लिसिटी नहीं हुआ, बट मैं वो फॉलो कर रहा था। तो गोल्फ खेलने के लिए वो टी करना पड़ता है, आपको पता है ना, वो गोल्फ सारे वो लेके चलना पड़ता है उनके साथ, पूरा पूरा टाइम रहना पड़ता है उनके साथ। तो हर मदर वॉज विथ हर। तो दिस वॉज अ वेरी मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर वो टाइम पे हुए थे कि हाउ लाइक टू फियर्स इंडियन women आर ट्राइंग टू गेट द फर्स्ट गोल्फ मेडल फॉर इंडिया।
and they almost got it. मतलब एकदम last में जाके they ended up on 4th place. So this is also a very good example जो games के point of view से हम लोग डाल सकते हैं. तो आई गेस हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आपके दिमाग में और कोई आ रहा है, जैसे अभी काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स हो गए, बट और मतलब ये तो ऐसा टॉपिक है कि इसमें और भी बहुत आएंगे. तो अगर आपको कोई अच्छे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, जैसे मैं सर ने बोला वो भवानी देवी वाला एग्जाम्पल, उसके बाद सीक्रेट ने बोला शिवाजी और जीजा माता वाला एग्जाम्पल, और एडिसन वाला एग्जाम्पल, और भी ऐसे एग्जाम्पल हम लोग डालते जाएंगे. चैंडलर सर ने तो अपना अलग ही दिया था कि कैसे इट्स नॉट ओनली मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू फीमेल और मदर रोल, बट द आइडिया ऑफ मदर की मतलब इट्स जस्ट मोर देन मदर, इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर की गांधी जी प्लेइंग दैट सेम रोल टू इंडियन नेशनलिज्म, है ना, ऐसे करके बहुत ही बढ़िया है. और कुछ एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में तो प्लीज फील फ्री टू शेयर. बाकी लोग भी जो लोग सुन रहे हैं, बिलीवर, चांद, अभिषेक, गणेश, आप लोग भी प्लीज शेयर करिएगा, इट विल बी बेनिफिशियल, है ना. कुछ दिमाग में आ रहा है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर. ठीक है, let's proceed. So we are filling the body of the essay with these examples, है ना. And our basic idea is to keep showcasing the importance of mother. But इसको और थोड़ा अगर dimensions में खोलेंगे तो हम लोग क्या इसमें कहीं पे women वाला concept भी ला सकते हैं क्या, कि women को empower करने की जरूरत है because they play such an important role. तो विमेन एम्पावरमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ऐसे बोल के हम लोग दिखा सकते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, हेल्थ इंडिकेटर्स में भी विमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विमेन हेल्थ इज एसोसिएटेड विद चाइल्ड हेल्थ. तो वो भी हम लोग लिंक कर सकते हैं, बट दैट विल बी लाइक ओपनिंग अ वेरी बिग डायमेंशन. तो यू नीड टू बी रेडी विद दोस फैक्ट्स एंड सम रिपोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है ना. वो फैक्चुअल जीएस इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, उससे थोड़ा लिंक करके. अभी हम लोग को सिंथेसिस टुवर्ड्स द एंड जाना है, तो अभी हम लोग को देखना है कि एंड कैसे करेंगे. और किसी को कोई अगर दिमाग में आ रहा है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर. हाय एसडी सर, वो एक्चुअली पावर आउटरेज था इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. ये पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस हो गया इसका? एम आई ऑडिबल सर? ये वाले का हैंड बैग सर, इसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस हो गया? नहीं स्ट्रक्चर मतलब अभी हम लोग कर ही रहे हैं डिस्कस. अभी हम लोग बॉडी पे आ चुके हैं. वी स्टार्टेड विद एनेक्डोट. आप मतलब एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना. इट्स लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी टॉपिक विच इज वेरी पर्सनल टू एवरीवन. तो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस हो गए हैं. आपको अगर कोई एग्जांपल होगा तो आप शेयर कीजिए. अगर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है तो आई विल इन्फॉर्म यू. सर मैंने तो ऐसे सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि ये हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड. सबकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी कि हैंड कौन कौन से हैं. तो मैंने हैंड्स को ही पहले डायमेंशन वाइज कर लिया था. पहले फैमिली में कौन हैंड रहेगा? मदर. उसके बाद फिर टीचर. उसके बाद फिर सोसाइटी जो सिखाए हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड. उसके बाद फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो वसुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी है, तो हम इससे कैसे रॉक मतलब जो सिखाए हाथ वही पाले और वही रूल करें. उसके बाद फिर मैंने बताया कि कैसे इन हाथों ने आगे चल के जो आगे के लीडर्स बनाए. फिर यूथ के आइडिया से कनेक्ट करना. एक्चुअली क्या है, सब आगे बढ़ गए ना, तो वो फॉर्मेशन में मेरे भी आइडियाज नहीं आ रहे. तो आपने बट जो बोला ना, हम लोग ने काफी उसी लाइन में किया है. बस आपने आई थिंक सोसाइटी वाला जो कॉन्सेप्ट बोला वो थोड़ा डिफरेंट है. आपने वो स्ट्रक्चर्ड वे में बोला. अभी तक वी हैव डिस्कस्ड फैमिली, और इवन वी वेंट टू द डिस्कशन. चैंडलर हैड सजेस्टेड ब्यूटीफुली कि गांधी जी वाज द पर्सन हु रॉक्ड द इंडियन नेशनलिज्म का क्रेडल, एंड वो फिर मास नेशनलिज्म हुआ एंड इट प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ हिम. इवन नीड नॉट जस्ट बी मदर, और भी लोग हैं जैसे, हाँ सी ही इज गिविंग मोर एग्जांपल. होमी बाबा न्यूक्लियर मिशन की, कैसे ही इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर मिशन एंड ऑल ऑफ दैट. तो ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल देके अभी हम लोग वो करेंगे. बाकी द होल जेनेसिस ऑफ दिस आइडिया, जैसे इवन एक्सिलर वाज पुटिंग इट, एंड ही इज आल्सो करेक्ट विद दैट, कि द आइडिया इज अबाउट गिविंग एन इंक्यूबेशन, है ना, मतलब गिविंग द सपोर्ट दैट इज नीडेड. और क्रेडल सिग्निफाइज एनी आइडिया. इट कुड बी एन आइडिया, or it could be a child, it could be something that needs support initially but later it takes its own wings and then it flies, है ना, ऐसे करके. और फिर रॉक्स द वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ने ये बोला था कि विद रिस्पेक्ट टू अगर चिल्ड्रन बोलेंगे तो दे आर आर फ्यूचर. तो फिर वो ही जाके वर्ल्ड को रूल करेंगे आगे जाके, है ना, दैट्स द नेक्स्ट जनरेशन. ऐसे तो कई सारे इवन थोड़े मतलब अपने हिस्टोरिकल और रिलीजियस एग्जांपल्स वगैरह भी दिए थे लोगों ने, अभिमन्यु वगैरह के. तो आई थिंक वी हैव सफिशिएंट एनेक्डोट्स. नाउ वी शुड प्रोसीड टुवर्ड्स यू नो लाइक टाइंग अप द, मतलब अभी बहुत सारे डिमेंशंस खोले तो उसको टाई अप करना है.
लास्ट में मैंने जैसे बिफोर एक्सिलर सर वाज पॉइंटिंग आउट, मैंने बोला था कि somehow we should connect this also with women empowerment, मतलब not in a mechanistic way but in an organic way। जैसे उसको कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, बोलेंगे कि चलो ठीक है, if the mother is so important, इतने सारे एनेक्डोट्स दिए, सुधा मूर्ति वाला दिया, इवन विश्वनाथन आनंद वाला दिया, इतने सारे एग्जांपल दिए, तो मदर इज इंपॉर्टेंट देन प्रोटेक्टिंग द मदर इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड स्टेट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। तो फिर वहां से हम लोग लिंक करेंगे कि चलो जो भी स्टेट के डेवलपमेंटल मॉडल वो है, स्कीम्स है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लेडीज है उनके लिए जो हम लोग ने किया है, मातृत्व सुरक्षा योजना एंड ऑल ऑफ दीज, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ईच एंड एवरी स्कीम, वो तो हमको पता ही है स्कीम्स कौन से है, उसमें से वी जस्ट नीड टू नो। और हाँ, स्कीम कोट करते वक्त थोड़ा सा एक्यूरेसी चाहिए, अगर हमने गलत से कोट कर दिया ना तो इट शोज अ बैड इंप्रेशन, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी हो, इवन इफ यू कोट फ्यूअर स्कीम्स इट्स फाइन, बट एक्यूरेटली कोट करना। और स्कीम कोट करेंगे, बोलेंगे कि स्टेट प्लेज अ रोल, और इसको थोड़ा फेमिनिज्म में ले जाएंगे ना तो थोड़ा सा डाइवर्स हो जाएगा ऐसे लग रहा है, अदरवाइज फेमिनिज्म से भी जोड़ देते, बट आई एम फीलिंग कि डाइवर्स होगा। आपको क्या लग रहा है? मतलब सर पेट्रियार्की है और वैसे अगर जाएंगे तो थोड़ा एकदम ही एक्सपैंड हो जाएगा, है ना? एक्सपैंड, और इन द सेंस कि हमारे जो एक मतलब मैं मानता हूँ कि ऐसे जो एक रेल ट्रैक पे चलना चाहिए, आईएएस थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा उससे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मदर पे थोड़ी ना फोकस करेंगे। अगर मैं जैसे मैंने अपनी अप्रोच बताई, एक्चुअली क्या है, स्ट्रक्चर लिखा नहीं किसी ने, तो फिर क्या है, अभी भी आइडियाज इधर उधर घूम रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले अपन एक स्ट्रक्चर लिख ले कि हैंड्स किसको किसको हम बोल रहे हैं। तो मदर के बारे में जितना लिखा, ऐसे एक पैरा लिख लिया हमने, एक पेज, तो उसमें ये सारा समेटा आ जाना चाहिए जो भी आप कह रहे हैं, वो इतना कंसाइज करें हम एक्चुअली लोग। आई थिंक कि क्या होगा ना कि मदर का थोड़ा सा एक पैरा से ज्यादा होगा, मतलब आई थिंक 30-40% मदर पे रखेंगे, उसके बाद अराउंड 10-20% हम लोग जैसे महात्मा गांधी हो गया, बैरम खान हो गया फॉर अकबर, है ना, ऐसे जो थोड़े स्पेसिफिक एग्जांपल्स है वेयर इट वाज नॉट ओनली अ मदर, somebody else played that role, वो देंगे। उसके बाद जैसे आपने बोला स्ट्रक्चर, अभी किसी ने, जैसे अभी मैं बोल रहा था, किसी ने नहीं लिखा, बट हाँ दैट्स देयर कि somebody has to put this, I think some people have also given some structure। अगर कोई स्ट्रक्चर डाल पाएगा तो अभी डाल देना इन द नेक्स्ट 10 minutes एज वी वाइंड दिस टॉपिक अप। और जो मैंने पैट्रियार्की का बोला था ना, उसको एक ऐसे पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं शायद, है ना, कि विमेन के जो प्रॉब्लम्स हम लोग कोट करेंगे उसमें बस बोल देंगे कि विमेन आल्सो हैव टू डील विद पेट्रियार्की एंड द एसोसिएटेड हैंडीकैप्स, एंड हेंस इट देयर इज अ नीड दैट वी नीड टू ब्रिंग सोशल चेंज, है ना, चेंज इन द थिंकिंग ऑफ द पीपल, कि दे आर सो इम्पोर्टेंट सो दे नीड टू बी गिवन इम्पोर्टेंस, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे। तो एक्सिले सर, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एनेक्डोट्स या कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे ना तो आप प्लीज शेयर करना, और ये otherwise we will be going towards conclusion of the आ रहा है सर, आ रहा है। जैसे कि हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, बट दीज हैंड्स आर आल्सो डैम, मतलब आजकल इन हाथों को भी बहुत ज्यादा लाचारता का वो लेना पड़ रहा है। विमेन पे क्या इशू हो रहा है, तो हम लोग एक तरीके से ये बता सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग वे कि ऑल दो दीज आर द हैंड्स जो आगे बढ़ा रहे हैं, बट इन हैंड्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब एक 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 एसेट हम ऐसा बनाएंगे, एक फैसेट ऐसे कैसा बनाएंगे जो डिमांड ना हो, जिससे कि एक सरप्राइज मिले उसको कि हाँ यार, जो हाथ है, इन हाथ, ये हाथ भी जख्मी है, कि वुमेन को क्या इशू आ रहा है, टीचर्स को क्या इशू आ रहा है, सोशल कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है सोसाइटी में। तो इस वजह से जो ये हैंड्स दैट, मतलब सोसाइटी एज अ हैंड ये भी काम नहीं कर रही थी। सोशल कैपिटल कैसे बन रहा है, मतलब रोड पे कोई पड़ा हुआ है, कोई उठा नहीं रहा, तो ये भी तो है, सोसाइटी जो है अपने काम से डिफ्लेक्ट हो रही है। नेशन में भी हम लोग डाल सकते हैं। तो ऐसे हम ये बता सकते हैं कि जो हाथ काम कर रहे हैं वो अब हाथ हैंडीकैप भी हो रहे हैं, और इसको बचाने के लिए क्या करना है, एक पैरा इस पे डल जाएगा। तो क्या इट विल बी अ टिंट ऑफ सरप्राइज फॉर द एग्जामिनर कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर नहीं था लेकिन इसी पर था। लिंक्ड थॉट है ये, मेरा अजम्पशन था कि कंक्लूजन से पहले मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 पन्ना इसके बारे में लिखा होता। नहीं, दिस इज अ वेरी यूनिक वे ऑफ पुटिंग इट, एंड दिस इज, और आपने जो ये एकदम लास्ट में डाला है ना, जस्ट प्री कंक्लूजन या जो बोलते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज मुझे लगा थोड़ा सा है ना इमोशनल टच था इसको, कि जो हाथ सपोर्ट कर रहे हैं वही हाथ अभी लाचार है, ऐसे। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, मतलब ऐसे सब लोग बोलते हैं, इवन टॉपर्स वगैरह सजेशन में भी मैंने देखा है कि एक इमोशनल इम्पैक्ट होना चाहिए ऐसे का, कि एक फीलिंग आनी चाहिए जो पढ़ रहा है ना कि अरे हाँ, मतलब ही शुड बी इंस्पायर्ड काइंड ऑफ, तो ये इट विल हेल्प दैट। तो जैसे प्रीवियस ऐसे में हम लोग ने गांधी जी का एग्जांपल लिया था, मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स, उसको भी थोड़ा इमोशनल वाला था, और यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक रखा था इमोशनल एग्जांपल जो मैंने सजेस्ट किया था, इट वाज रिगार्डिंग ओलंपिक प्लेयर भवानी देवी। तो इनका थोड़ा इमोशनल, मतलब एकदम लास्ट में जाते वक्त हम लोग जब वो करेंगे ना तो इमोशनल हिंट देने के लिए, वो भवानी देवी का तो आपको पता ही है, शी इज द फर्स्ट फेंसर जो इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट की। उनका ये था कि उनकी मदर ने गोल्ड को गिरवी रखा था टू गेट हर इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो ये थोड़ा सा इमोशनल वो करके हम लोग दोबारा इसको एंड कर सकते हैं, टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर।
एंड आपने जो बोला सोसाइटी वाला, वो भी बहुत उसमें है कि वो और एक्सपैंडेड व्यू है, तो वो प्री कंक्लूजन में आ जाएगा, करेक्ट? आई एम Yes, श्योर sir. यू, या I- तो yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये छोटी बातें हैं ना, इससे बहुत मतलब वी कैन राइट अ वेरी गुड ऐसे, बट अगर हम उसको इमोशनल और पॉजिटिव नोट पे एंड नहीं करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा कहीं पे लैकिंग फील होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी ऐसे हो उसको पॉजिटिव, जैसे इवन दृश्यम सर ने भी पहले कई बार बोला है कि वी नीड टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो उससे काफी एक ऐसे ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखता है, जो कि एक्सपेक्टेड है फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स, एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट्स, कि हम ऑप्टिमिस्टिक रहे अबाउट द फ्यूचर, है ना? तो दैट इज वेरी वेरी क्रूशल। तो आई yes, गेस sir. लोगों ने थोड़े, हाँ 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 बोलिए। सर, एक्चुअली मैं भी वही बताना चाह रहा था कि हम लोगों को कुछ ऐसा मतलब इमोशनल वैसा नहीं, हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं। हमने ऊपर इकोनॉमिक दे दिया, सोसाइटी दे दिया, तो एथिक्स भी देना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि इमोशनली दो, कुछ एथिक्स से रिलेट कर दो। तो ये मेरा एथिक्स से रिलेशन था कि हम लोग इसको। इमोशनल मैं कह रहा था कि एंडिंग में देंगे ना, तो थोड़ा वो हाँ हाँ। अच्छा इफेक्ट कर ये जाता है, ऐसे कह रहा था मैं। मतलब पूरा ऐसे तो इमोशनल नहीं लिखना ही, और राइट। ये सर, तो इसमें ये मैं इसको कंसर्न करना चाह रहा था कि ये जो है ये पेनल्टीमेट कंक्लूजन है। अल्टीमेट कंक्लूजन सर एक क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए। मतलब ये मेरा मानना है कि हम जैसे क्वेश्चन का सारे आंसर दे दिया है, ऐसे में कुछ एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ना है हम लोग को। और सर कंक्लूजन डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग अल्टीमेट वाला, क्योंकि मैं वही दे रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी 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 मतलब हो गया है, तो कंक्लूजन से हम लोग करेंगे और इनपुट्स लेंगे। तो आप अपना बताइए कंक्लूजन आपने सोचा है जो। यस सर, अल्टीमेट कंक्लूजन में हम लोग ये देखते कि अब जो है मतलब जैसे ये हमने बता दिया कि इसमें ये ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, सभी के बारे में बता दिया, सोशल कैपिटल, नेशंस में क्या हो रहा है। नेशंस भी अब यूएसए वो साथ नहीं दे रहा, डेवलपिंग कंट्रीज का, डेवलप्ड कंट्री सिर्फ अपनी बात करे, कोरोना का वो बता दिए। अब इसका वे फॉरवर्ड हम लोग देते हैं, जैसे दृश्यम सर ने आप अभी बताया, दृश्यम सर ने बोला पॉजिटिव नोट पे। तो जो पॉजिटिव नोट है ना, वो हमारा अल्टीमेट कंक्लूजन स्टार्ट होता ऑलमोस्ट पॉइंट 8 या फिर एक पेज में। उसमें हम सारा का सारा वे फॉरवर्ड देते हैं कि सोसाइटी को अब किस चीज की जरूरत है, जिससे कि ये हैंड्स भी सेफ रहे और वो जो क्रेडल है वो भी वहां पर सेफली रहे। मतलब ऐसा एक हिंट देते हुए कि वे फॉरवर्ड जो भी है कि सोसाइटी में हम लोगों को वुमेन के लिए क्या करने की जरूरत है ताकि वो हैंड्स सेफ रहे, यूथ को क्या चीज के लिए, क्या चीज की तरफ इंस्पायर करना है। एक वे फॉरवर्ड एक तरीके का ये अल्टीमेट कंक्लूजन होना चाहिए। और एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया जाए कि ये जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, क्या ये कैपिटल फॉर्मेशन आगे की जनरेशन के लिए परफेक्ट है? मतलब अभी मैं मेटावर्स के बारे में पढ़ रहा था, टाइम नहीं है वरना फिर बताता पूरा कि सोसाइटी में कैसे कैसे जो चेंजेस आ रहे हैं वो हैं, तो उसका भी यूटिलाइजेशन यहाँ पर कर लेते हैं अल्टीमेट कंक्लूजन में कि क्या अब सोसाइटी वो बन रही है, कि क्या अब वो कंपैशन, वो वैल्यूज, वो फैमिली वैल्यूज हैं, वो इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअल एलियनेट हो चुका है, या फिर ऐसा है कि वो आगे बढ़ेगा। ये मतलब एक क्वेश्चन पोज करते हैं। ये मेरा टेक था इस पर। राइट राइट, हाँ ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, बट वो ही मतलब आप जो बोल रहे थे ना, वो इतना ब्रॉड लग रहा था कि थोड़ा सा मतलब दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट, ब्रॉड ब्रॉड करना होराइजन को, बट इट शुड नॉट फील कि आप थोड़ा सा टॉपिक से मतलब हर ब्रॉडनेस को आपको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, है ना, कि व्हेन यू आर गिविंग सम एग्जांपल, तो हाउ इज इट रिलेटेड टू दिस वाला कॉन्सेप्ट, तो उतना अगर कर पाएंगे तो इट विल बी द बेस्ट थिंग। तो जैसे कंक्लूजन में जैसे अभी इन्होंने बोला वैसे करेंगे। और हम लोग अभी जैसे वी हैव ब्रॉट दिस अप की इम्पोर्टेंस ऑफ मदर को हमने वी हैव एक्सपैंडेड ओवर द लास्ट 15-20 मिनट्स। उसको जब हम लोग कर रहे हैं तो एक हाथ इमोशनल का वो डाल दिया और ब्रॉड वाला कॉन्सेप्ट दे दिया। और उसको हम लोग एंड ओपन एंड भी कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ, या फिर पॉजिटिव एंड भी कर सकते हैं। और ये इन्होंने जो बोला ना कैपिटल वाला, उसमें मेरे को एक अभी दिमाग में आया कि अभी जैसा वी ऑल नो कि इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पुश हो रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ अ कैपिटल, है ना। तो आर वी ऑल्सो फोकसिंग ऑन सोशल कैपिटल, ये बट ये काफी अच्छा है, बट इज इट रिलेटेड, इज इट मतलब ये हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल में फिट हो रहा है कि नहीं, मैं इसी के बारे में सोच रहा था। वरना ये तो पक्का मतलब इट विल फिट, इट विल बी वेरी गुड टू यूज, बट इट शुड फिट दैट टॉपिक। तो आई एम नॉट एबल टू क्लियर, अगर किसी को अगर लग रहा है कि ये नहीं फिट हो रहा तो यू कैन शेयर। मतलब थोड़ा बहुत ब्रॉड हो रहा है एज कम्पेयर टू द टॉपिक। I mean, we can use even this if you what are the project around you or the resources you have also guide you. I mean, your future. और जैसे सोशल कैपिटल तो एक हो गया, और एक और बोल सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला बोल सकते हैं। ये तो मतलब बहुत क्लीशे हो गया अभी, हर हम कितने 2-3 साल से यही देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज भी हम लोग देखते हैं कि जो बेसिक हेल्थ इंडिकेटर्स है जो हमारे बच्चों के हैं, और इवन मदर मैटरनल जो इंडिकेटर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ
मतलब skilled population in the coming years to be able to utilize our demographic dividend and not let it become a demographic disaster. ऐसे कुछ करके हम लोग end कर सकते हैं इसको. This is what I think we should do. अगर किसी और को जैसे specific कुछ pointers है for conclusion तो please feel free to share. आप अपना बताइए कुछ conclusion का सोचा है तो, और otherwise we will be, I think we are done with this topic, है ना? जैसे चैंडलर वगैरह आप भी काफी अच्छे पॉइंट्स दे रहे थे, तो आपने अगर कंक्लूजन का सीक्रेट मैम आप भी दे रही थी, तो कुछ अगर कंक्लूजन का सोचा है तो प्लीज शेयर. सर मैं ना इसका एंटीथीसिस सोच रहा था. जो आपने अकबर का बैरम खान का एग्जांपल दिया था ना, तो उसकी स्टोरी कंटिन्यू ये हुई थी ना कि 5 साल बाद अकबर ने उसको कहीं मतलब दिल्ली से बाहर भेज दिया था, मतलब कि अब वो दिल्ली में नहीं रहेगा, और फिर उसको रास्ते में मार दिया था. तो मुझे एक एंटीथीसिस में ऐसा थोड़ा सा देना था ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब वो जो हैंड उसको होता है पता क्या ना, चैंडलर मतलब चैंडलर मेरा सर उसको मक्का मदीना भेज दिया था, उसको मार नहीं दिया गया था. उसको रास्ते में मक्का मदीना भेज दिया था, तो वो उसको मतलब वहां से उसको भेज दिया था. मार तो रास्ते में नहीं मार दिया दिया था उसको. ना, लेकिन उसको लोगों ने रास्ते में मार दिया था सर. हाँ रास्ते में मार नहीं, मेरा वो मारने का भी नहीं है. मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हैंड आपको हेल्प करता है ना, उसको भी लोग मतलब क्लोज नहीं रखते. मतलब अकबर ने उसको बाहर भेजा था. एक पहला मेरा ये एंगल था. और दूसरा मतलब मैं पूछ रहा हूँ सजेशन, दूसरा कि चाइना जैसे एड्स वगैरह देता है, जो मतलब पुअर अफ्रीकन नेशंस ये सब हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो एड्स का इंटेंशन ही मतलब गलत होता है. तो मतलब इस तरीके से मतलब मैं थोड़ा सा वो काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देना चाह रहा था कि बहुत बार जो हैंड्स होते हैं वो उनका इंटेंशन भी मतलब हमेशा राइट नहीं होता है, ऐसा कुछ. तो जो ऐसा बोला कर ना वो सकते हैं उसमें क्या? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, चाइना वाला तो एक सेकंड के लिए साइड में रखते हैं, बट आपने जो बैरम खान वाला बोला ना, इसको अगर आपको यूज करना है तो आई थिंक इट कैन बी यूज्ड विद दिस कॉन्सेप्ट कि हाउ जैसे सीनियर पेरेंट्स को हेल्प करने का कुछ लॉ वगैरह आया था ना कि वी हैव टू हेल्प देम, वी कैन नॉट डिस्कार्ड देम. एंड ये जो एक सोशल ईवल है इंडिया में, कभी कभी होता है कि पेरेंट्स जब ओल्ड हो जाते हैं तो देन दे आर मिसट्रीटेड एक्सेट्रा. तो ये नहीं होना चाहिए. इसको ऐसे आप लिंक करोगे ना उससे तो हो जाएगा. बट आप देखो मतलब अगर आपको यूज करना है तो इससे आप लिंक कर सकते हो. आई फील दैट वुड बी अ गुड वे ऑफ लिंकिंग इट विद द टॉपिक. आपको क्या लगता है? हाँ सर, ये अच्छा पॉइंट था जो आपने बोला, नहीं टू द पॉइंट भी होगा. अच्छा, तो इससे एक वो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ऐसे भी दे सकते हैं कि मतलब जो हैंड हेल्पिंग हैंड है जो उसी को हम काट रहे हैं, पेट्रियार्की को टारगेट कर सकते हैं ना, सोशल क्लीवेज. मतलब पेट्रियार्की को टारगेट कर सकते हैं कि कैसे विमेन को अभी भी विमेन के लिए बहुत सारी लिमिटेशंस हैं. इसका आई थिंक टाइम यूज पेट्रियार्की का सर्वे एक दे पासिंग सकते हैं. रेफरेंस, हाँ पेट्रियार्की का पासिंग रेफरेंस शायद बॉडी में किया था, काफी ब्रीफली किया था. बट आई डोंट थिंक कि दोबारा कंक्लूजन में पेट्रियार्की को मेंशन करने की जरूरत है. मतलब इट विल बी लाइक ओपनिंग इट अगेन ना, ऐसे मतलब अभी नहीं, वी आर ट्राइंग टू कंक्लूजन के लिए क्लोज. नहीं बोल रहा मैं. प्री कंक्लूजन में जो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किया था ना, वहाँ वी कैन ऐड दिस. हाँ वहाँ पे डाल सकते हैं. SD, मुझे ये पूछना था कि जैसे ये कोट है, ये दैट इज ओनली रिलेटेड टू वुमेन, और वी कैन मतलब हम इसको है ना मेल फादर या उस हिसाब से भी कुछ बोल सकते हैं, या उनके लिए यार भी? एक्चुअली अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि इट्स नॉट एट ऑल रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन, इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू मतलब इट्स जस्ट द एनी आइडिया ऑफ गार्जियन ऑल्सो. हाँ हाँ. बट मेल फादर और ये LGBTQ वगैरह उसमें जाएंगे ना तो थोड़ा बहुत ही एक्सपैंड हो जाएगा. वी हैव टू फिनिश इन टाइम लिमिट एंड आल्सो विद 10 पेजेस ना. बट अगर ओके ओके ओके. इफ यू हैव समथिंग स्पेसिफिक इन माइंड व्हिच यू वांट टू कोट, तो आपको शेयर करना है तो यू कैन फील फ्री टू शेयर, बिकॉज वो भी यूज हो सकता है. अगर इफ इट कैन बी यूज, है ना. छोटा सा अगर ओके कुछ ओके. एनेक्डोट है. सर वो तो थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लगता हाँ सर, एक्सट्रीम हो LGBT जाएगा. का और ये नहीं हाँ वही. नहीं है, बट अगर कुछ अच्छा एनेक्डोट है तो आप शेयर कीजिए. अगर यूज करना है कहीं पे याद आ जाएगा किसी को तो कर लेंगे. बट वही हो जाएगा कि बैरम खान का बोला, महात्मा गांधी का बोला, अभी सोसाइटी वाला जो एलेक्सिर ने बोला, काफी आ गए हैं. मतलब नॉन मदर नॉन फीमेल रोल वाले एग्जांपल्स काफी हो गए हैं, ऐसा लगता है मुझे. बाकी आप अगर मेल फादर वाला बोल सकते हैं तो या सिंगल मॉम या ऐसे कुछ आपको लिंक करना पड़ेगा, बट वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लिंक करना. इफ यू हाँ आर एबल टू एग्जैक्टली डू इट. हाँ, वो आई एम एक्चुअली थिंकिंग, मतलब वो लिंक नहीं कर पा रही हूँ. मतलब फाइनली कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर कोई मेल फादर या सिंगल फादर हो तो हाउ ही विल ऑल्सो, मतलब वो फिट नहीं बैठ रहा. चलो ठीक है. ओके राइट. तो आई गेस एट दिस स्टेज वील क्लोज दिस ऐसे. अगर किसी को फाइनल कुछ शेयर करना है तो दिस इज द मोमेंट यू कैन, अदरवाइज वील क्लोज दिस ऐसे.
आई गेस नहीं है किसी के पास. All right, guys. Thank you for this session. We discussed the two topics: materialism versus wantlessness वाला topic, and hand that rocks the cradle rules the world. Thank you. तो मैं अभी recording बंद कर देता हूँ.